Okay, so good morning, class. Today we are in our second semester of Diploma in Architecture. So the subject we are going to study is applied mathematics. Okay, so for this applied mathematics, see course code is 312301. Okay, and we have 5 COs for this course. So first CO is what is CO? CO is course objective. That is why we are learning this course. So the first CO is to solve the broad-based engineering problems of integration using suitable methods. So in this semester, we are going to study integration first of all, and since there are number of formulas which we need to learn, so we will have enough time to learn them. So that's why we are starting with integration this time. CO2 is to use definite integration to solve given engineering related problems. Okay, so forget about engineering. This is basically applicable everywhere. Application of integration is in every part. For example, you want to calculate an area of an irregular shape. Okay, so there integration will help you. How we are going to discuss. Then next is CO3. Apply the concept of differential equation to find the solution of given engineering problems. Differential equations we are going to solve. Then CO4 is apply numerical methods to solve program specific problems. So what is numerical methods? Numerical methods are some formulas or theorems developed by some mathematicians. So those methods we are using to solve, basically those methods we could apply in programming. Means when we have to calculate n number of data points. So at that time, a simple formula cannot work. So you need some methods or some iterations for that to get that answer. So manually, it is not possible to take 50 iterations or 100 iterations of the same formula. So what we do, we learn these kind of numerical methods to get some kind of answers. And these kind of methods are applied as a program which we use in computers. And then the computer will perform n number of iterations. And whatever you like, means 50 iterations, 100,000, whatever number of iterations you want. So that program will conduct that much iterations and then you will get exact accurate answers. But to understand, to go till there, we need to understand the basic numerical methods. The basic method we must learn. And here, for exam purpose, we will take one iteration, two iteration, and we will get approximate answers. Those will not be the exact answers, but those will be the approximate answers. And those numerical methods we are going to learn. Then the last CO is probability distributions to solve elementary engineering problems. So you must have heard about probability. है ना? So what is probability? क्या क्या? नहीं 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 हाँ, chances to get something. जैसे for example, there is a box and there are 3 different colors of balls in a box, है ना? And you have to pick any one ball without seeing. So what are the chances that the ball is red? है ना? So that is probability. What is the probability? Or for example, means there could be n number of examples. For example, randomly you are picking something from a box, or there are you have cards, है ना? So टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 56 कार्ड्स होते हैं ना? एक जो आपका सेट होता है उसमें 56 कार्ड्स होते हैं. सो फ्रॉम दैट कार्ड्स, वो जो आपने मैजिक शो देखते हो उसमें बताते हैं कि आप बताओ आपको कौन सा चाहिए. देन यू से कि मुझे हार्ट का 5 नंबर चाहिए. सो वो उसमें से निकाल के वो दिखाते विदाउट सीइंग दोज कार्ड्स. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 4 बार पिक करेगा और उसमें से एक बार आपका आंसर करेक्ट आएगा.
सो दैट या फिर आप कॉइन टॉस करते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, अगर आपने 3 कॉइन एक साथ टॉस किए। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं एंड दैट कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, so this will be your CO5 and similarly these are the 5 units, means CO1 belongs to unit number 1, CO2 belongs to unit number 2 and so on. So the assessment scheme, which is the important part for us. So assessment scheme is same as we have discussed in our basic mathematics. So basically, there will be 3 classes for CL and one will be tutorial wala class. Okay, yes. ठीक है. So we will be engaging 4 hours per week. ठीक है, 3 will be for lecture and 1 hour will be there for as a tutorial. In tutorial, you are expected to practice number of questions which we have studied already in class. So you have 2 credits for this subject. Duration for exam will be 3 hours as it was there in basic mathematics. And the exam scheme will be FETH will be, means internal will be 30 marks, external will be you have to give an exam of 70 marks, right? At the exam center, total 100 marks, 40 marks minimum you should score. है ना? There is a combined passing. So 40 is minimum marks, total marks 100. Okay. So this is your syllabus for this semester. As we discussed, first unit is indefinite integration. Okay. So as we discussed at the time of derivation, that there are integration means to multiply things, है ना? When you keep on multiplying things, आप जब बढ़ाते जाते हो उस नंबर को, so you need some limit कि कहाँ तक बढ़ाना है. तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में देर आर लिमिट्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है? एस, एस बनाते हो आप, दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. And limit means 0 to 10, 0 to 100, 0 to 1000 or anything, 0 to 2, 0 to 5, anything, right? So it denotes कि आपको कहाँ से कहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इक्वेशन, है ना? देर इज एन इक्वेशन जैसे ax² + by + c. अब इसमें आपका अननोन कौन सा रहता है? x. x is unknown or in other words variable. x is variable, a b c are constants, right? So at the place of x, आपका ये कहना है, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि x की जगह पर एक बार 0 डालो और आंसर निकालो, फिर बोला कि x की जगह पे 0.5 डालो आंसर निकालो, x की जगह पे 1 डालो आंसर निकालो, 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे आपको 10 तक जाने के लिए मैंने बोला. तो ये सेम चीज करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? मीन्स एक बार सॉल्व करने के लिए, मतलब x की जगह पे आपने 0 डाल के वो सेम इक्वेशन आपने सॉल्व किया, इसको आपको 2 मिनट लगे. ऐसे 2 मिनट करते 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 आपको मैंने बोला कि 0.5 का आपको डिफरेंस लेना है और ऐसा आपको 10 तक जाना है. तो आपको सेम क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, 0.5 का ही डिफरेंस लेना है. मतलब 0 के बाद 0.5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.5, फिर 2, है ना? तो यू विल हैव टू सॉल्व द सेम इक्वेशंस 20 टाइम्स, राइट? सो इसी जगह पे अगर आप उसको इंटीग्रेशन में डालते हो और आपने लिमिट सेट कर दिया 0 to 10, ठीक है, तो अब आपको इसके सारे, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इतने वैल्यूज डालने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, और फाइनल जब आप 10 तक जाते हो तो उसका आंसर क्या मिलेगा, वो आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा. तो आपका टाइम जो है वो बच गया. ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ अब इसमें 2 पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकेंड इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो
As per our units, we are going to learn first indefinite integration, which is a simpler form in which there is no limit. Limit is not specified. ठीक है, ऐसे नहीं बोला है कि 0 से 10 तक या फिर क्या, ऐसा लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया है. यू जस्ट हैव टू उसको इंटीग्रेट करना है ना. तो वो वाला पार्ट आपका यूनिट नंबर 1 में आएगा. यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ोगे डेफिनाइट इंटीग्रल, जब आप उसको लिमिट प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है. देन थर्ड यूनिट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन. And fourth will be numerical methods. In numerical methods, we are going to learn number of different methods. So in which there will be a bisection method, then there will be regular-Falsy method, then there will be Newton-Raphson method, then there will be Gauss-Seidel and Jacobi's method, and finally Bakshali's iterative method. Okay, these much methods we have to study. And finally, in last unit, we are going to discuss about the probability distribution. Means probability we are going to study, in which we are going to discuss binomial distribution, Poisson's distribution, and normal distribution. So there are 3 variations. After this, yes, this is the important part. Here they have mentioned the number of questions or will be that will be asked in your MSBT ka exam. है ना? So for indefinite integration, that is first unit, total 20 marks के questions will be there, and learning hours are 15, and जो basic 2 marks वाले question है वो आएंगे, 6 mark का question आएगा और 12 marks का question आएगा. ठीक है. सेकंड जो आपका डेफिनाइट इंटीग्रल है, सो देयर विल बी 12 मार्क्स के क्वेश्चन इन एग्जाम, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स. है ना. The same weightage is there for unit number 3, which is differential equation. For unit number 4, numerical methods, weightage is 14. So there will be a 2 marks wala question, 4 marks and 8 marks question. And for probability distribution, last unit, the allocated marks are 12. So there will be 2 marks का question, 1 4 marks का question, and 1 6 marks का question. ठीक है. So according to this, you have to plan your studies. है ना. So assessment tools. So first is formative assessment. For formative assessment, we are going to take your class tests and assignments. Okay, so there will be an assignment after each unit, which you have to complete and upload on our LMS portal. And after every 2 units, there will be a class test, and you have to solve that class test. It will be compulsory, and those marks will be considered in this formative assessment wala part, which is for 30 marks. So there will be a combination of your attendance, your assignment submission and class test. ये तीनों को मिला के आपका वो 30 marks का internal बनेगा, right? That will be formative assessment, and summative assessment will be your end term exam, which will be there for 70 marks. These are the textbooks which you can refer for applied mathematics this semester. So B.S. Grewal and Datta. These 2 books. We have this Das, Advanced Engineering Mathematics by H.K. Das. This book is already available in our library. You can discuss with the library ma'am, Meenakshi ma'am. And we are going to order this Grewal and Datta. These are nice textbooks. MSBT का separate with subject code, वो अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल रहता है, तो काफी बेटर रहेगा. ये वाला ना ऐसा. I know, but we cannot keep it as a reference book. It is not that authenticated. है ना. मतलब इसके ऊपर
ये MSBT ने नहीं बोला है कि आप इसको गाइड बोल के, ऑफ कोर्स आते ही है, और हम उसको फॉलो भी करेंगे। वी हैव दैट बुक, आई एम गोइंग टू शेयर दैट बुक विथ यू। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, उसके प्रिंट निकाल के उसका PDF एंड ऑल वो सब होने वाला है। सो वो सारा नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जैसे इस बार आपको LMS स्टार्ट हो गया है, आप जाके देख सकते हो, है ना। और आज मैं उसको अपडेट भी कर दूंगी, तो आपका जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल रहेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। सो बट उसके लाइब्रेरी के लिए कॉपीज नहीं आ सकती, है ना। वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगी पूरा LMS पे। लाइब्रेरी में मुझे रेफरेंस बुक ही मंगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो 8 8 दिन का कुछ है ना उनका BT कार्ड का। कॉलेज के सब्जेक्ट है कोई नहीं। कॉलेज के तो ये सब्जेक्ट का ही तो बुक है ना। ये वाला जो रहेगा हाँ। उसका जो एडवांस हम्म। ये रेफरेंस हाँ, तो मैम ने लास्ट टाइम में क्लास में जो करते हैं वो हम घर पे नहीं देते, वो बस ये भी बैठ के आपको पढ़ना होगा। लेकिन हम डिग्री के बच्चों को तो देते हैं। ये उन्होंने कहा था लास्ट टाइम जब वो पढ़ना लेके गए थे, हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा था कि जो रेफरेंस वाले बुक है वो बस आपको एक ही पढ़ना होता है, आप घर नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक कि क्लास में भी नहीं ला सकते लाइब्रेरी से। नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ उनसे, ऐसे थोड़ी होता ठीक है आपको मैं बात है। हाँ। तो ऐसा कौन सा बुक है जो उन्होंने अलाउ किया है घर ले जाने सब्जेक्ट बुक के? मतलब कौन से? ये वाला सब्जेक्ट का बुक है ना, और इसके बहुत सारे बुक रहते हैं जो रेफरेंस वाले रहते हैं। ये बुक घर पे लेके जा सकते हैं, बट जो हम्म। रेफरेंस वाले बुक नहीं लेके जा मैं बात करती हूँ, वैसे तो होगा नहीं। Let's see. हाँ, and these are the links for learning websites and portals. You do take a picture of this and इसको रेफर करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे, सो जिसको आप और पढ़ के अपना और स्ट्रेंथन कर सकते हो। वैसे ये PDF भी LMS पे है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसमें NPTEL के अभी तक किसी ने NPTEL का कोर्स किया है क्या? एक किया है? अच्छा, क्या है? ओके। NPTEL एक पोर्टल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, और इस पोर्टल के ऊपर देयर आर n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब आप कोई भी खोल के देख लो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेके तो मेडिकल की कोर्सेज, तो कोई भी ब्रांच, है ना। और ये सारे जो लेक्चर्स है, मतलब जो कोर्सेस है, ये IIT के प्रोफेसर्स ने बनाए हुए हैं। So they are very good and they provide very good quality of reference material also. They also take your exams. They also give you assignments. है ना? So there is a complete course, complete online course. So MSBT is also expecting you to apply to that course, और उसके वो आपको credits आपके consider करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आज ये करना है आपको। आप घर पे जाओ या फिर यहाँ से भी इंटरनेट एक्सेस होता है, तो NPTEL में पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा आपका। लॉगिन क्रिएट करो, और वहां पे उसका स्वयं स्वयं भी नाम है उसका पोर्टल का, स्वयं NPTEL ऐसे करके। तो वो वहां पे आप अपना ये क्रिएट करो। देन इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज। अब उसमें से जैसे यहाँ पे आपको ये एडवांस मैथमेटिक्स है, तो इसमें से कोर्स मैच करो, कि आपके इसमें का हो सकता है कोई एक ही टॉपिक मैच करे, या जैसे भी। सो आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर अगर आपको एग्जाम देना है ना, तो यू कैन चूज कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। सो अगर आपको सिर्फ रेफरेंस मटेरियल चाहिए और सिर्फ पढ़ना है, तो आप विदाउट एग्जाम वाला ऑप्शन चूज करो। उसकी मतलब जो फीस है वो बहुत कम रहती है, या रहती नहीं है शायद, ऐसा कुछ है। वो देखो, मैंने जो कोर्सेज किए थे मैंने एग्जाम वाला ऑप्ट किया था, तो उसके लिए कुछ नॉमिनल 800 900 ऐसी फीस थी, कुछ ज्यादा रहता नहीं है, मतलब बहुत नहीं है एक्सपेंसिव। अभी नहीं बेटा, क्लास के बाद।
सो वहां पे आपको अप्लाई करना है एंड इट इज योर चॉइस। अगर आप वो कोर्स करते हो तो यू विल गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। बट उसके लिए क्या है कि आपको उनके वीकली असाइनमेंट रहते हैं। मतलब वो इट इज अ वेरी इंटरैक्टिव एंड इजी प्लेटफॉर्म। मतलब आप रात को 12 बजे भी लेक्चर ओपन करके देख सकते हो, 1 बजे भी देख सकते हो, सुबह 9 बजे भी देख सकते हो। इट इज योर चॉइस। सो एक जो स्टडी मटेरियल उनका खुल गया, वीक 1 का स्टडी मटेरियल उनका ओपन हो जाता है। सो दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दैट असाइनमेंट बेस्ड ऑन द लेक्चर। ठीक है। और वो असाइनमेंट करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। उस वीक के अंदर आपको वो क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ उसमें क्विज होते हैं छोटे से, या फिर कुछ छोटा सा एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करना रहता है। तो वो करने के लिए 1 हफ्ते में वो लेक्चर्स आप अपनी पेस से सुनो, एक दिन में भी पूरे सुन सकते हो या रोज एक एक करके भी सुन सकते हो। और वो आपको सॉल्व करना है और उसको सबमिट करना है। तो वो कोर्स जो है, कोई 4 वीक का कोर्स रहता है, कोई 8 वीक का, कोई 16 वीक का। तो आप अपने कन्वीनियंस से चूज करो कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 4 वीक का कोर्स लिया, तो 4 वीक के 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। और इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट एग्जाम वाला जिसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए अगर उस कोर्स का, तो आप अप्लाई करते समय ही एग्जाम चूज करो। और फिर आपको ऑनलाइन उसका हॉल टिकट आएगा आपके मेल पे। ठीक है। और अपने यहाँ के जो नागपुर में एग्जाम्स होते हैं वो वाडी में देखो, कुछ वो कभी आप गए होंगे कोई ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। क्या नाम है उस प्लेस का, आयोन डिजिटल। आयोन डिजिटल के 3 वहां पे लोकेशंस है वाड़ी में, है ना, जहाँ पे वो सारे कार की शोरूम्स है ना। उस साइड में मतलब हिंगना और वाड़ी को जो कनेक्ट करता है ना हॉरिजॉन्टल रोड, वहां पे है वो तीनों सेंटर्स। तो उसमें से कोई एक आपको सेंटर आएगा। और उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला, लिखने वाला एग्जाम नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला है। एंड दैट यू हैव टू अपियर। और जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बन के आता है। इट इज दैट सिंपल, यहीं से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सो एमएसबीटी ने भी बोला है कि आपको ऐसे कोर्सेस करने हैं और उसके सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, वो आपका मार्कशीट में मेंशन भी होके आएगा इफ इट इज रिलेटेड टू दिस। एंड इट इज मतलब वो इतना फ्री है कि फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल का भी कोई कोर्स अगर आपको करना है तो आप कर लो, वो आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा ना। जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा में ही हेल्प करेगा, बट है ना। तो वो पोर्टल पे आज आपको सबको लॉग इन करना है। और वो कोर्सेज स्टार्ट होने के डेट्स अलग अलग रहते हैं। तो अभी आपको जो कोर्स चाहिए उसको देख के रखो, उसका डेट हो सकता है 2 महीने बाद होगा। तो ध्यान रखो कि कब उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है ना, और तब जाके उसमें आपको रजिस्टर करना है। हो सकता है कोई कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है तो फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो वो आपको देख के रखना है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर माय सब्जेक्ट, किसी और भी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हो। और इसमें देखो बहुत सारे दिए हुए हैं, SOSmath.com है, फ्री रिसोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स है इसके ऊपर, mathworld.wolfram.com। इसमें से किसी पे भी जाके आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक। For that I want to show you a video lecture.
यस। सो इसका एप्लीकेशन समझ में आया, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। अगर कैलकुलेशन ऑफ एरिया में अगर इसका एप्लीकेशन हम अगर अप्लाई करते हैं, सो यू कैन सी दिस डोम। ये डोम का अगर आपको एरिया में कैलकुलेट करने के लिए बोलती हूँ, सो इट इज नॉट अ रेगुलर शेप, राइट। मतलब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर का एरिया मैंने निकालने के लिए बोला तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, बट डोम में इट डिपेंड्स अपॉन द कर्वेचर, कि उसका कर्वेचर कितना है। आपने मल्टीपल डोम्स देखे होंगे, आपने मंदिर का डोम देखा होगा, है ना, मस्जिद का देखा होगा, गुरुद्वारा का देखा होगा, हर किसी का शेप अलग रहता है, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द कर्वेचर ऑफ दैट आर्क, उसका आपको एरिया निकालने के लिए वो कर्वेचर आपको पता चाहिए, राइट। सो वहां पे आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन मिलेगा। सो सी सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन देखा है आपने। नाउ जैसे मैंने बोला था आपको कि जब हम डेरिवेशन करते थे, थोड़ा बहुत जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने देखा था कि जो कांस्टेंट है, अगर सिर्फ कांस्टेंट बच बच गया, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो क्या होता है, जिसके साथ एक्स है, मतलब वेरिएबल है, वो रिड्यूस होता जाता है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो जीरो हो जाता है, वो कट जाता है। ये डेरिवेटिव में हो रहा था। तो अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब अब इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब हम इंक्रीज करते हैं तब इसके अंदर कांस्टेंट ऐड होते जाते हैं। मतलब अगर आपने एक बार इंटीग्रेट किया किसी भी इक्वेशन को, आपने फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया, तो इसके अंदर प्लस सी ऐड हो गया, सो सी इज अ कांस्टेंट। अब इफ आई एम सेइंग कि अगेन इंटीग्रेट दिस सेम फंक्शन, तो उसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। दो बार इसी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो सी प्लस सी वन ऐड हो जाएगा, तीन बार करोगे तो सी प्लस सी वन प्लस सी टू ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स उसके अंदर ऐड होते रहते हैं,
और जो ये x है, f ऑफ x है, अगर सिर्फ x है, मेरा इक्वेशन सिर्फ x है, मैंने x को इंटीग्रेट अगर मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, अगर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया है। सेकेंड टाइम जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो x का क्यूब हो जाएगा। बट जब मैं x का स्क्वायर कर रही हूँ तो मैं मुझे डिवाइडेड बाय 2 लिखना पड़ता है। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2। देन सेकेंड टाइम अगर मैं उसको इंटीग्रेट करती हूँ तो इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पहले का था इंटू 2। मतलब एक बार 4 फिर से आ गया वो डिनोमिनेटर, मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। बट बेसिकली वो वैल्यू बढ़ती 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 जाती है, जितने टाइम आप इंटीग्रेट करोगे उतने टाइम वो वैल्यू बढ़ेगी और उसमें कॉन्स्टेंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है।
ये पार्ट समझ में आया कि इनडेफिनेट, हाँ, नहीं, ओके। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या बोला है कि आंसर जो है आपका, वो जैसे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसका आंसर आपका डेसिमल में, नंबर्स में मिलता था ना। किसी चीज को आपने सॉल्व किया, आंसर आया 15, 25, है ना, राइट। बट यहाँ पे सिंस देयर आर नो लिमिट्स, बोला नहीं है कि 0 से 5 तक करो, 0 से 10 तक करो, जो है वो लिमिट अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उसका आंसर भी एक फंक्शन ही है ना, इक्वेशन ही है। उसका फाइनल आंसर आपको नहीं मिल सकता। तो उसके लिए उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, वैल्यू तक लेके जाने के लिए उसके अंदर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। सो ये जो पूरा फर्स्ट यूनिट है आपका, उसमें आपके आंसर्स ऐसे ही आएंगे, मतलब फंक्शन के फॉर्म में ही आएंगे। ठीक है, जस्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी cos x को इंटीग्रेट किया है तो आंसर sin x प्लस सी आया। sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर cos x प्लस सी आएगा। समझ में आ गया? हाँ, साइन और कॉस को क्या किया? सी, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, है ना। ये सारा इसमें है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि इसको लर्न करो करके, दिया भी था, राइट। सो वो हमको अभी रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। जब तक हम ये नहीं रटेंगे, मतलब हमको ये रटना पड़ेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस होता है और कॉस एक्स का डेरिवेशन जो है वो साइन एक्स होता है, ऐसे, है ना। ये रटना पड़ेगा। फिर इसके कॉम्बिनेशन का कुछ इक्वेशन आएगा जिसको आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए बोलेंगे। फिर उसको हमको सॉल्व करना है। जैसे इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कौन सा टॉपिक किया था वो, उसके अंदर छोटे छोटे टर्म्स थे, उसको हमको सॉल्व करना पड़ रहा था। आई एम नॉट गेटिंग दैट पार्ट। पार्शियल फ्रैक्शंस, लॉग वाला किया था। लॉग के क्वेश्चंस याद है आपको? ये देखो, इसके आपने ये लर्न किया था कि क्या करने पे कैसे होगा, राइट। मतलब अगर माइनस है तो फिर डिवीजन है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। ये आपने लर्न किया था ना फॉर्मूला, राइट। फिर आपको ऐसे कुछ इक्वेशन मिला, तो ये इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया और फिर आपने उसका आंसर निकाला। तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी, बट उसके बेसिक फॉर्मूलाज हमको लर्न करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे है। ये देखो, डेरिवेटिव्स के स्टार्टिंग के जो सारे पेजेस है ना, ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है। So there are these number of formulas यहाँ पे दिया है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये पूरा जब हम लर्न करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1/x⁴n इज इक्वल टू माइनस n/x⁴n+1, ये जब हम लर्न करेंगे देन वी विल एबल टू सॉल्व दिस। नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट इज जस्ट सी। सो जब तक हम इसको लिमिट प्रोवाइड नहीं करते तब तक वो सी के लिए कुछ हमको मिलेगा नहीं। यही जब आप सेकेंड यूनिट जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर वो कांस्टेंट को वैल्यू मिलेगी, जब हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे तब। और हम बीच में वो कांस्टेंट को ऐसा एक्स कुछ जैसे पहले इसमें एक्स यूज करें, सेकंड टाइम से एक्स को यूज उससे नहीं, कांस्टेंट का नोटेशन सी है और एक्स को यहाँ पे वेरिएबल कंसिडर किया, है ना। सो टुडे आई विल अपलोड ऑल दीज फॉर्मूलाज। पहले ये डेरिवेटिव का अपलोड करती हूँ,
आप भी यहाँ से भी स्कैन करके लेके जा सकते हो, बट ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। जब तक ये लर्न नहीं होगा तब तक ये यूनिट हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता। Means कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हमें इसमें देख देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। So should I continue with the video? ध्यान है दोनों का? क्लास में फोन नहीं यूज करना है, ये बताना पड़ेगा क्या फिर से? ये सब मेंशन कर लो, जो फॉर्मूलाज है लिख लो, लिखना है ये सारे फॉर्मूला।
लिख लो इसको, हेडिंग डालो। नया कुछ पार्टीशन करो, पहला जो खत्म हो गया उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स यूनिट का नाम डालो। यूनिट नंबर 1, इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डन वेद, हो गया क्या?
Note down. कांस्टेंट जीरो रहता है। नहीं, जीरो रहता है ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो द लिमिट्स, इसलिए उसको बस सी लिख के रखा है। कांस्टेंट का मीनिंग जीरो नहीं है। डन आपका? लिख लो, आपको लिखना है ये सब। Addition of 3 plus 1 will give us 5 by 2. So we will get x raised to 5 by
आई होप ये 3/2 + 1 का आंसर 5/2 कैसे आया वो आपको आता है। 2 का 3 में ऐसा है और बैक साइड का जो मतलब पता है ना आपको, उसमें इतना पूछ रहा डन। नोट डाउन फॉर्मूलाज। ट्वेंटी मार्क्स का है इंटीग्रेशन, तो करना ही है इस बार। फोन में से क्या देखना पड़ रहा है बेटा? हाँ, क्यों यहाँ से दिखता नहीं है क्या? And